حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلني من الباقين على سيد الشهداء وأصحابه ثم الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره ومشيره وابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين الذي قيل في شانه ضربة ولي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة التي قيل في شانها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على الحسن المعصوم والحسين المظلوم الذي قيل في شانهما سيدا شباب أهل الجنة صلوات. اللهم صل على محمد وعلى وآل الطيبين محمد. الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کے اس مقدس محفل میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کو اس حاضری کا اجر کثیر عطا فرمائے اور اس محفل کا مجلس کا اور اس سارے اہتمام کا ثواب محترم پیر سید ظہور حسین بخاری صاحب کے نام اعمال میں درج فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت و حاجت روائی کے لیے بآواز بلند صاحب اللهم صل على محمد وآل ماہ شعبان محمد. المعظم ہے. اس مہینے کو میرے اور آپ کے آقا پاک پیغمبر نے اپنی طرف نسبت دی ہے. جو ہے ماشاءاللہ. پاک پیغمبر نے فرمایا توجہ کرنی انشاءاللہ لطف آئے گا, صرف توجہ ضروری ہے. پاک پیغمبر نے فرمایا کہ الرجب لعلی والشعبان لی ورمضان للہ. ماشاءاللہ. بے شک بے شک. پاک پیغمبر نے فرمایا, نبی پاک کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ رجب میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان المبارک جو آ رہا ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے. اب ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے, برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے, اللہ کا مہینہ آ رہا ہے, بخشش کا مہینہ آ رہا ہے. ہر شخص الحمدللہ تیار ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا, ہے نا, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا, اپنی بخشش کا سامان بنائے گا. تو اب دیکھیں
पाक पैगंबर ने क्या कहा कि रजब मेरे भाई का महीना है। अब उस महीने तक कैसे पहुंचना है, अल्लाह तक कैसे पहुंचना है, तवज्जो है ना, उस महीने तक कैसे पहुंचना है, अल्लाह की बारगाह में कैसे पहुंचना है। तो वाज़े हुआ कि पाक पैगंबर ने फरमाया कि पहले दर अली पे आना होगा। पहले माह रजब है, बेशक पहले दर अली पे आना होगा। जब दर अली पर पहुंच जाएगो फिर दर मुस्तफ़ा तक पहुंच जाओगे। ऐसे है ना, जब दर मुस्तफ़ा तक पहुंच जाओगे फिर तुम खुदा तक पहुंच सकते हो। जब तक दर मुस्तफ़ा पर नहीं आओगे उस वक्त तक खुदा तक नहीं पहुंच सकते। इसी तरह है ना, इस माह मुबारक में बहुत बड़ी हस्तियों की विलादत बासआदत हुई। तो मैं सिर्फ एक हस्ती का जिक्र करूंगा, लेकिन पहले मैंने जो आपके सामने अल्लाह की लाराइब किताब, बेआइब किताब, मुक़द्दस किताब कुरान मजीद, ये ऐसी बाबरकत किताब है जिससे मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया है। ये ऐसी मुक़द्दस किताब है कि जिसका देखना भी सवाब है। कुरान मजीद, जिसका देखना भी सवाब है, जिसका पढ़ना भी सवाब है, जिसका सुनना भी सवाब है। कुरान मजीद मासूम फरमाते हैं, कुरान मजीद की तरफ देखने से अल्लाह आंखों के गुनाहों को खत्म कर देता है। सिर्फ कुरान मजीद की तरफ नजर करने से अल्लाह आंखों के गुनाहों को माफ कर देता है। कुरान मजीद के सुनने से अल्लाह कानों के गुनाहों को माफ कर देता है। कुरान मजीद की तिलावत करने से अल्लाह जबान के गुनाहों को माफ कर देता है। बहुत बाबरकत किताब है। अब कुरान हमारी बख्शिश और निजात का जरिया है। तो इसी कुरान करीम की मैंने एक आयत सूरह आले इमरान, सूरह आले इमरान की 31 नंबर आयत है, जो है 31 नंबर आयत है सूरह आले इमरान की। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, कुल कह दे मेरा हबीब किन लोगों को, जो फकत आपके सामने है, नहीं, ये सिर्फ पाक पैगंबर उन लोगों को नहीं कह रहे जो आपके सामने थे, बल्कि कुरान दस्तूर है, आईन है क़यामत तक लोगों के लिए। समझो है ना, कह दे मेरा हबीब इन लोगों को जो आपके सामने हैं और क़यामत तक ये दस्तूर है। कुरान आने वाली नस्लें क़यामत तक जो हैं उन सबको एक पैगाम पहुंचा दो। वो पैगाम क्या था? देखें मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, हर शख्स चाहता है कि अल्लाह मेरे ऊपर राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। जब अल्लाह राजी हो जाएगा इंसान की बख्शिश हो जाएगी, निजात हो जाएगी। इसी तरह है ना, नमाज किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि अल्लाह राजी हो जाए। तवज्जो है ना, नमाज किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि अल्लाह राजी हो जाए। जब अल्लाह राजी हो जाएगा इंसान को जन्नत मिल जाएगी, बख्शिश हो जाएगी। आपका भी प्रोग्राम है ना जन्नत जाने का। हर बंदा जन्नत की ख्वाहिश रखता है। जन्नत ऐसी प्यारी शय है, ठीक है ना, हर बंदा जन्नत का ख्वाहिशमंद है। जन्नत कब मिलेगी? जब अल्लाह राजी हो जाएगा। ऐसे है ना, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी। बंदे कोई नहीं बैठे, ढेर सारे बैठे हो यार, कोई थोड़े जे मिल के दुए जेड़ा ना अगर सावरां दे दुए इस्तकबाल करो, ना दे बेहतरीन अंदाज विच उन्हां नूं सुनो ते दाद दिओ। सारी उच्ची आवाज दे नाल नाराए हैदरी, हैदरी। बहरहाल आपने तवज्जो रखनी है इंशाअल्लाह, क्योंकि मजलिस एक दर्स है। अगर मजलिस से कोई चीज हासिल ना हो तो फिर मजलिस नहीं है। तवज्जो है, जो भी इंसान अमल कर रहा है किस लिए? अपनी बख्शिश के लिए, अपनी निजात के लिए। नमाज पढ़ रहे किस लिए? ताकि अल्लाह राजी हो जाए। माशाअल्लाह। रोजा रख रहा है किस लिए? ताकि अल्लाह राजी हो जाए।
اس طرح ہے نا. حج کرتا ہے اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے کس لیے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اس طرح ہے نا بھائی. مسجد بنوا رہا ہے کس لیے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. کہہ رہے ہوتے ہیں نا مولانا صاحب بھائی جنت ملے گی, اللہ کا گھر بنائے جنت ملے گی. یعنی مسجد بنوا رہا ہے کس لیے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر رہا ہے, پانی کا اہتمام کر رہا ہے, کوئی سڑک بنا رہا ہے, راستہ بنا رہا ہے, کس لیے؟ تاکہ اللہ اس عمل سے راضی ہو جائے. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو جنت ملے گی, انسان کی نجات ہو جائے گی. اللہ کو راضی کرنا ہے. تو آپ مجھے بتائیں, اب راضی کرنا ہے اللہ کو. جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا اس وقت تک نجات نہیں ہوگی. تو اب کسی کے رضا یا ناراضگی کس طرح معلوم ہوتی ہے؟ دو طریقے سے. توجہ ہے نا, دو طرح سے. کسی کے رضا یا ناراضگی کا اظہار دو طرح سے ہوتا ہے, یا اس کے چہرے کے آثار سے یا وہ زبان سے کہتے. اس طرح ہے نا, جس طرح آپ کے چہروں سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ خوش بیٹھے یا ناراض, بآواز بلند صلوات پڑھیں. یعنی چہرے کے آثار سے پتہ چلتا ہے, یا زبان سے وہ کہہ دے میں راضی ہوں یا ناراض. اب ہم نے کرنا ہے اللہ کو راضی. اب آج تک کسی نمازی کو اللہ نے آ کر کہا ہو کہ تو ساری رات مصلی عبادت پر بیٹھتا ہے, میں تجھ سے راضی ہوں. کسی گرمیوں کے روزے رکھنے والے کو کہا ہو کہ میں تجھ سے راضی ہوں. کسی حاجی کو کہا ہو, توجہ ہے نا, کسی حاجی کو کہا ہو اتنا پیسہ خرچ کر کے تو آیا میں تجھ سے راضی ہوں. تو کرنا ہے اللہ کو راضی. جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا نجات نہیں ہوگی, جنت نہیں ملے گی. اب اللہ چہرہ رکھتا نہیں ہے کہ وہ سامنے آئے اور ہم اس کا چہرہ دیکھ کر کہیں کہ اللہ ہمارے اس عمل پر راضی ہے. توجہ ہے نا, اللہ چہرہ رکھتا نہیں کہ وہ سامنے آئے اس کا چہرہ دیکھ کر کہیں کہ اللہ راضی ہے, یا وہ زبان سے کہہ دے. اللہ چہرہ بھی نہیں رکھتا کہ وہ سامنے اور ہم اس کا چہرہ دیکھیں. زبان وہ رکھتا نہیں کہ ہمیں کہے کہ میں تیرے اس عمل سے راضی ہوں. اب کس طرح پتہ چلے گا کہ اللہ ہمارے اس عمل سے راضی ہے یا ناراض؟ توجہ ہے نا. تو پھر اللہ نے ایک دستور بتایا, ایک اللہ نے قانون بتایا ہے کہ میں کس طرح راضی ہوتا ہوں. توجہ ہے, میں کس طرح راضی ہوتا ہوں. تو پھر آئیے اسی قرآن سے پوچھتے ہیں, کیونکہ قرآن ایک دستور ہے, قرآن ایک کتاب آئین ہے. قرآن صرف مردے بخشوانے کے لیے نہیں آیا. توجہ ہے نا, ہاں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں. قرآن بابا زندہ کے لیے یقیناً پڑھیں, ثواب ہے, ناراض نہیں ہونا. اگر صرف قرآن پڑھنے سے لوگ بخشے جاتے تو پھر امیر تو ویسے موجیں کرتے, امیر کے بعد 100 200 400 قرآن پڑھ کے اس کو بخشوا دے, غریب پھر بھی رہ جاتا. بابا قرآن یقیناً ثواب ہے, لیکن قرآن آیا ہے زندہ لوگوں کے لیے. قرآن ایک دستور بن کے زندہ لوگوں کے لیے. قرآن ایک آئین ہے. تو ہم پوچھتے ہیں اے اللہ پھر ہماری رہنمائی کر کہ کس طرح تو راضی ہوتا ہے. تو پھر اللہ نے اسی قرآن میں, اسی جو میں نے اس اپنی مختصر گفتگو کا آغاز کیا سورہ آل عمران میں, ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے راضی کرنا ہے نا, تو پھر میرا ایک دستور ہے, میرا ایک قانون ہے. آپ اس قانون کے مطابق عمل کریں, میں اللہ راضی ہو جاؤں. وہ قانون کے اللہ نے بتایا, قول اے میرا حبیب ان لوگوں کو کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ. سبحان اللہ, کیا بات. قاری صاحب تشریف فرمائیں. قرآن بالکل سادہ ہے, اس کا ترجمہ بالکل آپ جا کے دیکھیں, سورہ آل عمران 31 نمبر آیت. قل کہہ دے میرا حبیب ان لوگوں کو, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو. ہر بندے کی یہی خواہش ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے. ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اور یقیناً ہر انسان چاہتا ہے نا کہ میں اللہ سے محبت کروں, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اس طرح ہے نا. تو پھر دوستو بھائیو بزرگوں, محبت یک طرفہ کافی نہیں ہوتی. میں محبت کروں, میں اگر ایک شخص سے محبت کرتا ہوں, توجہ ہے, اگر وہ محبت نہیں کرے گا میری محبت کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اس طرح ہے نا. میں اگر کسی کو چاہتا ہوں, اگر وہ نہیں چاہے گا, محبت کامیاب نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں, تو یہ محبت کا فائدہ تو تب ہوگا کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے نا. تب
मोहब्बत का फायदा होगा। मोहब्बत का तब फायदा होगा जब अल्लाह मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, जैसे भी मोहब्बत की जाती है, मोहब्बत की कोई ना कोई गर्ज होती है, किसी गर्ज के तहत मोहब्बत की जाती है। दुनियावी मोहब्बत भी यही है ना, एक बंदा एक शख्स से मोहब्बत करता है, किसकी बुनियाद पर? दौलत की बुनियाद पर, एक कुर्सी की बुनियाद पर मोहब्बत करता है, एक हुस्न की बुनियाद पर। यानी मोहब्बत की कोई ना कोई गर्ज होती है। जब तक वो गर्ज है मोहब्बत होती रहेगी। मोहब्बत गर्ज के बगैर नहीं होती। तो ज्यादा इसकी तफसील मैं बयान नहीं करूंगा। अल्लाह कहता है कि अगर तूने मोहब्बत करनी है और मोहब्बत की कोई ना कोई गर्ज है तो फिर आ मेरे दरवाजे पर, तेरी हर गर्ज को मैं पूरा करूंगा। जो है यानी कोई कुर्सी की खातिर मोहब्बत करता है, कोई दौलत की खातिर किसी से मोहब्बत करता है, कोई इक़्तिदार की खातिर किसी से मोहब्बत करता है, कोई हुस्न की खातिर, यानी कोई ना कोई सबब है। फिर अल्लाह कहते हैं मैं तेरी हर गर्ज को पूरा करूंगा। अगर तू दौलत चाहता है, दौलत का खालिक मैं हूँ। कुर्सी चाहता है, कुर्सी का खालिक मैं हूँ। तवज्जो है ना। अगर हुस्न की बुनियाद, हुस्न का खालिक मैं हूँ। मेरे अंदर तमाम अगराज मौजूद हैं, तू मुझसे मोहब्बत कर, मैं तेरी हर गर्ज को पूरा करूंगा। तवज्जो है ना। अब हमने अल्लाह से मोहब्बत करनी है। हमें सिर्फ ये दावा करना काफी नहीं कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। उस मोहब्बत का फायदा नहीं होगा जब तक अल्लाह हमसे मोहब्बत ना करे। तो फिर अल्लाह ने कहा कि कुल कह दे मेरा हबीब, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो, तो फिर ऐ मेरा नबी इन लोगों को कह दो फत्तबिऊनी। नबी को खिताब हुआ, इन लोगों को कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो फिर मुझ नबी की इत्तिबा करो, मुझ नबी की इत्तिबा करो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। अब कुरान में तवज्जो करने, कुरान में दो लफ्ज इस्तेमाल हुए। एक लफ्ज इताअत इस्तेमाल हुआ है, एक लफ्ज इत्तिबा इस्तेमाल हुआ है। इताअत और इत्तिबा। इताअत का ताल्लुक कौल से है, इत्तिबा का ताल्लुक अमल से। और पूरे कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं है कि जिसमें फकत अल्लाह ने अपनी इताअत का हुक्म दिया, बल्कि जहां भी है अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। और फिर यहां तक कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो, अल्लाह की इताअत करना चाहते हो, तो इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने रसूल को राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया। तवज्जो है। इताअत का ताल्लुक कौल से है, यानी जो कुछ पैगंबर कहे, जो कुछ मेरा नबी कहे, जहां कहे, जिस वक्त कहे, इताअत करनी है। तवज्जो है ना। कौल में यानी जो कुछ नबी कहे उसको भी मानो। इत्तिबा का ताल्लुक अमल से है, जो कुछ नबी अमल करके दिखाए उसको भी मानो। अब पाक पैगंबर कहें बैठ जाओ, तवज्जो है ना। इताअत रसूल क्या है? पाक पैगंबर कहें बैठ जाओ, फिर उठना नहीं है, तवज्जो है ना। इताअत रसूल यही होगी। पाक पैगंबर कहें बैठ जाओ, फिर उठना हराम। पाक पैगंबर कहें उठ के चले जाओ, फिर बैठना हराम, तवज्जो है ना। इताअत यही होगी ना। पाक पैगंबर कहें यहाँ रुकना है, फिर दौड़ना हराम है, तवज्जो है। इताअत यही है ना। जो कुछ पाक पैगंबर के जिस वक्त कहें, जैसे ही कहें, इताअत का ताल्लुक इसी से है कि जो मेरा नबी कहे उसको मानो। इत्तिबा का ताल्लुक इससे है, अमल से, कि जो कुछ पाक पैगंबर करके दिखाए, अमल करके दिखाए, उसको भी मानो। अब पाक पैगंबर ने नमाज का हुक्म दिया, तवज्जो है, नमाज का हुक्म दिया और अमल करके भी दिखाया। रोजे का हुक्म अल्लाह की तरफ से है, पाक पैगंबर ने रोजा रख के भी दिखाया। हज का हुक्म दिया, हज अमल करके दिखाया। यानी इताअत भी है, अमल भी है, कौल भी है, अमल भी है। नाराज तो नहीं हो रहे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मरहबा। अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह बहुत जल्दी राजी हो जाता है अगर इंसान आए तो सही, आए तो सही ना उसकी बारगाह में। कितनी अल्लाह की नेमतें खा रहे हैं। अगर आप पर कोई एहसान करे तो अपने मोहसिन को याद रखें। जिसका ज़मीर जिंदा है वो अपने मोहसिन को याद रखता है। और मासूम फरमाते हैं
दुनिया में भी यही है। अगर इंसान का ज़मीर ज़िंदा है, अगर उस पर कोई एहसान करता है, उस मोहसिन का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है। इसलिए मासूम फरमाते हैं, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो इंसान बंदों का शुक्रगुजार नहीं हो सकता, अपने मोहसिन का शुक्रगुजार नहीं हो सकता, अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा नहीं बन सकता। अगर आप पर कोई छोटा सा एहसान करे, किसी मुसीबत से आपको बचाए, अगर आपका ज़मीर जिंदा है, आप उस मोहसिन को याद रखेंगे, उसका शुक्रिया अदा करेंगे, तो फिर आइए, अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, अल्लाह ने कितने एहसानात किए हैं। आपको चाय की प्याली पिलाए, वो आपका मोहसिन होता है, आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं, सलाम करते हैं, तो उस अल्लाह ने कितनी हमारे ऊपर नेमतें की हैं। मादर शिकम से लेकर इस वक्त तक कितनी उसने नेमतें की हैं, कितना हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं, कितनी उसकी नेमतें हैं, कितना उसका हम शुक्र अदा करते हैं। देखिए मासूम फरमाते हैं, आए तो उसी उसके दरवाजे पे, जब इंसान नमाज के लिए वुजू करता है ना, वुजू करता है, तो मासूम फरमाते हैं जितने कतरे पानी के गिरते हैं ना, अल्लाह उतने फरिश्ते पैदा कर देते हैं, उस नमाजी के लिए दुआ मगफरत करते रहते हैं। क्या बरज़मत मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। और मासूम फरमाते हैं, मस्जिद की तरफ चल के जो बंदा जाता है, जितने उसके कदम के नीचे जर्रात आते हैं, बरोज़े क़यामत वो जर्रे अल्लाह की बारगाह में उस नमाजी के लिए गवाही देंगे। इसलिए हुक्म है, मस्जिद में जाते हैं, जब नमाज पढ़ते हैं, तो हुक्म है कि मस्जिद में जगह तब्दील करके नमाज पढ़ते रहें। क्यों? क्योंकि जहां इंसान नमाज पढ़ता है, जितने जर्रे उसके कदमों के नीचे आते हैं, जहां जितनी नमाज पढ़ते हैं, जितनी जगह उसके नीचे होती है, वो बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में उस नमाजी के लिए गवाह होगी, गवाही देगी। कितना हम अल्लाह का शुक्र करते हैं, कितनी अल्लाह की नेमतें हैं। अब अल्लाह को राजी करना है, बस जो कानून बता रहा था, अल्लाह को राजी करना है। तो अल्लाह ने कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, मेरे नबी के इत्तिबा करो, मेरे नबी के हुक्म को मानो। जब तुम मेरे नबी के हुक्म को मान ले हुए, अब नबी ने जो कुछ कहा उसको मानो, जो कुछ नबी ने अमल करके दिखाया उसको मानो। अब नबी ने क्या कहा, मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला। नबी पाक ने क्या कहा, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कहा है ना। यानी जो कुछ पाक पैगंबर ने कहा है उसको मानोगे तो फिर अल्लाह मोहब्बत करेगा। नबी पाक ने क्या फरमाया, अल फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, तवज्जो है ना, माशाअल्लाह। जो कुछ यानी पाक पैगंबर ने जो कुछ हुक्म दिया उसको मानो, फिर अल्लाह राजी होगा। फत्तबिऊनी, फिर अल्लाह दो इनाम देगा। जो मेरे नबी की इताअत करेगा, जो मेरे नबी के हुक्म को मानेगा, अल्लाह उसको दो इनाम देगा। इनाम लेना चाहते हैं, पहला इनाम इसी की अगला हिस्सा जो है, अल्लाह कहता है युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। कितना वो अजीम इंसान है जिससे अल्लाह मोहब्बत करे। युहिब्बुकुमुल्लाह। और दूसरा इनाम क्या देगा, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। अल्लाह मोहब्बत भी करेगा और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। लेकिन कब? जब इताअत रसूल होगी, जब इत्तिबाए रसूल होगी, बावाज़े बुलंद सलवात मोहम्मद बुलंद तर सलवात। अल्लाह को राजी करना है। फिर मासूम फरमाते हैं, अल्लाह चेहरा रखता नहीं, अल्लाह जबान रखता नहीं। फिर मासूम ने हमारी हिदायत फरमाई है, कहते हैं नहनु वजहुल्लाह, हम अल्लाह के चेहरे हैं। नहनु लिसानुल्लाह, हम अल्लाह की जबान है। यानी जिस पर मोहम्मद और आले मोहम्मद राजी हैं, उस पर अल्लाह भी राजी है। नहनु लिसानुल्लाह, नहनु वजहुल्लाह, हम अल्लाह के चेहरे हैं। बस मोहम्मद और आले मोहम्मद राजी हैं तो अल्लाह भी राजी है, और जिस पर मोहम्मद और आले मोहम्मद नाराज हैं, उस पर अल्लाह भी नाराज है। तो इताअत, बस आले मोहम्मद की इताअत, आले मोहम्मद की गुलामी। क्योंकि इसी 4 शाबान को थोड़ा सा तज़किरा हज़रत अब्बास अलमदार,
इताअत देखिए। एक सिर्फ जुमला सुभान अल्लाह। आपको ये कह के कि लोग एक होते हैं, दो रिश्ते होते हैं, एक नस्बी रिश्ता, तवज्जो है, एक सबबी रिश्ता। नसब होता है बेटा बेटी, समझ आ रही ना, एक होता है सबबी। ज्यादा अहमियत कौन सा रिश्ता रखता है, नस्बी या सबबी? नस्बी रिश्ता ज्यादा सबब अहमियत रखता है, सबबी रिश्ता इतना अहमियत नहीं रखता, दो लफ्जों से जुड़ता है, एक से खत्म हो जाता है, तवज्जो है ना। सबबी रिश्ता दो लफ्जों से, निकाह से जुड़ता है और तलाक से खत्म हो जाता है। ज्यादा अहम रिश्ता है नस्बी। सबबी रिश्ते की इतनी अहमियत नहीं। कुर्बान जाए वफाए अब्बास पे, तवज्जो है ना जो मैं कहना चाहता था। कुर्बान जाए हजरत अब्बास पे, नस्बी रिश्ता होने के बावजूद अपने आप को सारी जिंदगी गुलाम कहलवाया। लोग सभी भी रिश्ते के बड़ी दीवारें बनाते हैं, फलां की बीवी फलां का फलां, क्या है इतना वो अहमियत नहीं रखता जितना नस्बी रिश्ता अहमियत रखता है। क्या अजमत है अब्बास अलमदार की, नस्बी रिश्ता होने के बावजूद ये अजमत बता रहे हैं अहले बैत की, नस्बी रिश्ता होने के बावजूद अपने आप को सारी जिंदगी गुलाम कहलाया। क्या अजमत है हजरत अब्बास की। फर्श पे अर्शे उला से पयाम आता है, फर्श पे अर्शे उला से पयाम आता है, एक इंसान को यज़दान का सलाम आता है। फर्श पे अर्शे उला से पयाम आता है, एक इंसान को यज़दान का सलाम आता है। जब कभी तज़किरे अहले वफा होता है, लब पे बेसाख्ता अब्बास तेरा नाम आता है। बस अज़मत अब्बास का एक मुख्तसर सा वाक़या और आपकी ज़हमत को तमाम करें। हज़रत अब्बास का भी सिन 15 या 16 साल लिखा है। बहुत बड़े बहादुर थे, बाबा से बुलंद सलवात पढ़ने। एक दफा शमऊन यहूदी ने ज़ाज़ान नामी एक शख्स है, ज़ाज़ान अरब का एक मशहूर पहलवान था, उसको मौला अली को गिरफ्तार करने के लिए शमऊन यहूदी ने ज़ाज़ान को भेजा मदीने, और जाएं अली को गिरफ्तार करके ले आए। अब ये ज़ाज़ान मदीने पहुंचा, सबसे पहले इस ज़ाज़ान की मेरे और आपके आका हजरत अब्बास से मुलाकात हुई। अभी मौला अब्बास का सिन 15 या 16 साल लिखा है। मौला अब्बास ज़ाज़ान से पूछने कौन है, कहाँ से आया है? मैं फलां इलाके से आया हूँ, शमऊन यहूदी ने मुझे भेजा है। तवज्जो करनी है, लुत्फ आएगा। शमऊन यहूदी ने मुझे भेजा है। क्यों आया है? कहा अली को गिरफ्तार करने के लिए। हजरत अब्बास कहते हैं, ऐ ज़ाज़ान तेरे बस में नहीं है तू अली को गिरफ्तार करके ले जाए, वो जमाने का बहादुर इंसान है, तेरे बस में नहीं यही है कि आप गिरफ्तार करके ले जाएं, ये नहीं हो सकता, वापस चले जाएं, अपनी जान जाया ना करें। ज़ाज़ान कहता है कि नहीं, मैंने अली को गिरफ्तार करके ले जाना है, ये मेरी तौहीन है कि वापस चला जाऊं। जो है ना, तो हजरत अब्बास कहते हैं अगर तू बाज़िद है कि अली को गिरफ्तार करना है तो फिर पहले मेरे साथ जोर आजमाई कर ले। हजरत अब्बास ने कहा पहले तो वापस चला जा, तेरे बस में नहीं है। उसने कहा नहीं, मैंने अली को गिरफ्तार करना है। तो हजरत अब्बास कहते हैं अगर आप बाज़िद हैं तो पहले मेरे साथ जोर आजमाई कर लें। और हजरत अब्बास कहते हैं कि बस जोर आजमाई क्या करनी है कि आप मुझे अगर जमीन से उठा लेंगे, तवज्जो है, जमीन से उठा लेंगे तो मैं अपनी शिकस्त तस्लीम कर जाऊंगा और मैं समझूंगा कि तू अली को गिरफ्तार करके ले जाएगा। अब ज़ाज़ान जो अरब का मशहूर पहलवान था, हजरत अब्बास का 16 या 17 साल का सिन है, अब ज़ाज़ान ने जोर आजमाई शुरू कर दी। हजरत अब्बास को जमीन से ना उठा सका, तवज्जो है, पसीने से शराबूर हो गया जिस तरह आप शराबूर हैं, बावाज़े बुलंद सलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मरहबा।
माशाअल्लाह। बावाज़ बुलंद सलवात। जोर आजमाई शुरू की, पसीने से शराबूर हो गए, हजरत अब्बास को जमीन से न उठा सका। जब थक गया ना तो हजरत अब्बास ने जाजान की कमर में हाथ डाला, फिजा की तरफ बुलंद किया। तवज्जो है ना, अभी जमीन पर नहीं है तो हजरत अब्बास ने दोबारा फिजा में उछाला। जब नीचे आने लगा फिर हजरत अब्बास ने फिर फिजा की तरफ बुलंद किया। तीसरी दफा जब जमीन पर आया ना जाजान, हजरत अब्बास ने उसकी गर्दन पर अपना पांव रख के कहा कि तू अली को गिरफ्तार करने के लिए आया है। अली को गिरफ्तार करेगा। अब जाजान वाजिद में आकर कहता है, जब थक गया ना, शिकस्त तस्लीम का ली, तो वाजिद में आकर कहते हैं, ये शिकस्त फाश मुझको पहली बार है, ये शिकस्त फाश मुझको पहली बार है। मालूम होता है तू हैदर करार है। ये शिकस्त फाश मुझको पहली बार है, मालूम होता है तू हैदर करार है। हजरत अब्बास कहते हैं, नहीं, मैं तो अली के बेटों का भी गुलाम हूँ, अली के बेटों का भी गुलाम हूँ। इन्हें अपने आप को सारी जिंदगी गुलाम कहलाया है। बहुत बड़ा फख्र था हजरत अब्बास का। अल्लाह ने मौला हुसैन को मैदान करबला में सब शबीहें आई हैं। मौला हुसैन ने मजलूम करबला को नाना की शबी जनाब अली अकबर दिए, जो सगी नाना की शबी थी। मजलूम करबला के बेटे जनाब अली अकबर अपने नाना की शबी थे। जनाब अब्बास अपने बाबा की शबी थे। जनाब कासिम अपने बाप मौला हसन की शबी थे। बहुत बड़ा फख्र करते थे हजरत अब्बास पर। जब तज़किरा होता जनाब सानी ज़हरा कहती थी, जब करबला का जिक्र होता ना तो सानी ज़हरा कहती थी, बीबियों आप परेशान न हो, मैं आपके पर्दे की जामिन हूँ, मेरा भाई अब्बास। अज़ादारों, जब सारे यारों अंसार शहीद हो गए, हजरत अब्बास आए मौला हुसैन की खिदमत में। कहते हैं, मौला मुझे जंग की इजाज़त दीजिए। मौला हुसैन कहते हैं, मैं कैसे आपको जंग की इजाज़त दूँ, आप तो मेरी फौज के सालार हैं। हजरत अब्बास कहते हैं, ऐ मौला कहाँ है वो लश्कर जिसका मैं सरदार हूँ। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी, खेमे में रोने की आवाज़ आई, अल अतश की। हजरत अब्बास खेमे में जाते हैं। जनाब सकीना कहती है, चचा तू भी मौजूद हो और मेरा असगर भी प्यासा रहे। जनाब अब्बास कहते हैं, ऐ सकीना मैं कोशिश करता हूँ मौला के पास जाने की, मौला मुझे इजाज़त नहीं देते। बस इजाज़त मिली। जनाब अब्बास पानी भरने के लिए जा रहे हैं। जंग करते हुए अपने घोड़े को दरिया फुरात में डालते हैं। जंग करते हुए जब घोड़े को फुरात में डालते हैं तो उस वक्त एक चुल्लू पानी का भर के फिजा की तरफ बुलंद करते हैं और कहते हैं, ऐश किया, इस पानी पर नाज था जिस पर अकेले अब्बास का कब्जा है। लेकिन तारीख कहती है, कुर्बान जाए हजरत अब्बास की वफा पर, ये चुल्लू पानी का जो भरा है फिजा में बुलंद किया है, तो इस पर भी जनाब अब्बास अफसोस करते रहे हैं कि मैंने अपने हाथों को तर किया है। मेरा असगर प्यासा है, मेरा मौला प्यासा है। बस अज़ादारों मशक पानी की भरी जंग करते हुए आ रहे हैं। कहते हैं कि किसी तरह पानी खेमे में पहुंच जाए। बस अज़ादारों
جب خیام کی طرف آ رہے ہیں جنگ کرتے ہوئے، دشمنوں نے دیکھا کہ عباس اس طرح قابو میں نہیں آتے، ایک ملعون نے چھپ کر وار کیا، حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، حضرت عباس نے مشق لے کر بائیں بازو میں ڈالی، ایک دشمن نے چھپ کر وار کیا، حضرت عباس کا دایاں بازو بھی قلم ہو گیا، بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، حضرت عباس مشق کو لے کر منہ میں ڈالتے ہیں، مشق کا جو ہے دہانہ منہ میں ڈالتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پانی خیمے میں پہنچ جائے، میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، بس عزادارو ایک ملعون نے چھپ کر وار کیا، جو مشق میں لگا، پانی بہ گیا۔ اب میں کہتا ہوں صرف پانی نہیں بہا بلکہ عباس کی آس ختم ہو گئی۔ عزادارو ایک ملعون نے آپ کے سر میں گرز کا وار کیا، عباس زین سے زمین پر طرف آئے، اس وقت آواز دے کر کہتے ہیں اے مولا میری مدد کو پہنچیے۔ یہ آواز مظلوم کربلا کے کانوں پر پہنچی۔ جب یہ آواز پہنچتی ہے مظلوم کربلا کہتے ہیں الان انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی، میرا سہارا ختم ہو گیا۔ بس عزادارو مظلوم کربلا حضرت عباس کی لاش پر آتے ہیں، حضرت عباس کی جب لاش پر پہنچتے ہیں مولا عباس کہتے ہیں اے مولا حسین اگر گستاخی نہ سمجھیں، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک میں خون ہے، میری آنکھ کو صاف کیجئے۔ جناب مولا حسین نے جناب عباس کی آنکھ کو صاف کیا، جناب عباس نے آنکھ کھولی پھر آنکھ بند کر دی۔ مظلوم کربلا کہتے ہیں اے عباس تو نے آنکھ کو بند کیوں کیا ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں میں آپ کی یہ کیفیت نہیں دیکھ سکتا کہ کس طرح غریب ہوتے ہیں۔ بس عزادارو حضرت عباس کہتے ہیں مولا حسین کہتے ہیں اے عباس آپ کی کوئی تمنا ہو، آپ کا کوئی حکم ہو۔ عزادارو حضرت عباس کہتے ہیں مولا میری ایک تمنا ہے، ایک تو میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا کیونکہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا پانی لے کر آؤں گا، میں سکینہ سے وعدہ پورا نہ کر سکا۔ دوسرا میری قبر پر معاشقی کا نام لکھ دینا کہ سکینہ کا معاشقی پیاسا مارا گیا۔ عزادارو اس وقت مولا عباس کہتے ہیں مولا کوئی حکم ہو۔ اس وقت مولا حسین کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک دفعہ بھائی کہہ کر پکاریں تاکہ میں بھی فخر کر سکوں، میں وہ حسین ہوں جس کا عباس بھائی ہے۔ عزادارو اس وقت حضرت عباس کہتے ہیں اے میرے مظلوم بھائی، اے میرے مسافر بھائی۔ بس عزادارو جب یہ خیام کی طرف آواز گئی جناب زینب کہتی ہیں اے حسین عباس کو کہو کہ ایک دفعہ مجھے بھی بہن کہہ کر پکاریں تاکہ میں بھی فخر کر سکوں، میں وہ زینب ہوں جس کا عباس ویر ہے۔ بس عزادارو حضرت عباس نے کہا اے میری مظلومہ بہن، اے میری مسافرہ بہن، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔